Hello students, you are welcomed to the video lecture series of discrete structures and theory of logic. In this video lecture, we are going to discuss argument and its validity. So here we will discuss first what is argument, and then we will discuss validity of argument, how any argument can be valid, and we will solve some questions based on the argument validity of argument. So, what is argument? If we talk about argument, it is a process which yields a conclusion, right? It means आपके पास कुछ given set of prepositions हैं जिन्हें कि हम premise बोलते हैं. उन premise को अगर आप combine कर दें तो आपको एक valid conclusion मिलना चाहिए, right? Valid conclusion या फिर आपको एक conclusion मिलना चाहिए. So we can say that it will be an argument. So what is the definition of argument? An argument is a process which yields a conclusion, जिसका कुछ ना कुछ conclusion मिलता है from a given set of propositions called premises. यानी कि premises को use करके आप कुछ conclusion निकालते हैं तो उस statement को हम बोलते हैं, उस process को हम बोलते हैं argument. So let's say premises be P1, P2 and so on P1. Let's say हमारे पास P1, P2, P3 and so on. इस तरह से Pn हमारे पास premises है and let argument yield the conclusion Q, right? Argument एक conclusion आपको Q दे रहा है. देन इस आर्ग्यूमेंट को हम किस तरह से डिनोट करेंगे? देन सच आर्ग्यूमेंट विल बी डिनोटेड बाय P1, P2, and so on P1, right? It is the sign for implication, यानी कि this is yields the conclusion Q. यानी कि इन सबको मिलाकर P1, P2, Pn को मिलाकर आपको conclusion क्या मिल रहा है? Q. So this is how you can represent any argument. Now this was the discussion of argument. अब हम देखते हैं कि किसी भी आर्ग्यूमेंट की आप वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं. सो टू चेक द वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट हम क्या करते हैं? लेट्स से एन आर्ग्यूमेंट दिस इज कॉल्ड वैलिड. ये कोई भी आर्ग्यूमेंट है जो वैलिड कहलाएगा इफ क्यू इज ट्रू, यानी कि जो आपका कंक्लूजन है वो ट्रू है व्हेनेवर ऑल इट्स प्रीमाइसेस P1, P2 एंड सो ऑन Pn आर ट्रू. इट मींस जब कभी भी आपके ये आपकी प्रीमाइसेस अगर ट्रू है P1, P2 एंड Pn, ये सारी प्रीमाइसेस अगर आपकी ट्रू है तो आपका कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, राइट? सो एन आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड वैलिड if and only if the premises implies the conclusion. यानी कि अगर premises से if and only if लगा है, it means premises yields a conclusion. आपका उन सब premises से मिलकर आपको एक conclusion मिल रहा है. Thus the argument is said to be valid if the statement, हम ये भी कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि if and only premise जो आपकी है अगर premises से conclusion आपको मिल रहा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि valid कब होगा? जब ये statement आपका क्या हो? टोटोलॉजी हो, राइट? इट मींस आपको प्रीमाइसेस का एंड करें, राइट? इट विल इम्प्लाई दैट यू, राइट? अगर ये स्टेटमेंट आपका टोटोलॉजी है सो वी कैन से दैट द स्टेटमेंट इज वैलिड. नाउ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हमने अभी बताया था. कभी कभी हम इस तरह से भी नोट कर देते हैं. लेट्स से इस तरह से तो हमने नोट किया P1, P2 एंड Pn yields a conclusion Q. It's written as P1, P2 and so on Pn. ये हमने इस तरह से लिखे सारी premises. So these are the premises and यहाँ पर हमने underline के बाद हम लिखते हैं conclusion, that is Q. So these are premises and this is Q is conclusion. So कभी कभी हम इस तरह से भी नोट करते हैं किसी भी argument को. This is another way of representation of an argument. तो स्टूडेंट अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट पर, कि हम कैसे किसी आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी जज करते हैं. So consider the question. In this you are asked that prove that the following argument is valid. We have to prove that ये जो argument दिया है आपको ये valid है. So argument को अगर observe करें so we can clearly find out that these both are premises P or Q and not P. So these are premises, right? क्योंकि ये इस underline से ऊपर है तो हमने देखा था इस तरह से भी हम denote करते हैं argument को, and Q is your conclusion, right? So हम इसकी बात करें तो Q is conclusion and P और Q ये एक premise है let's say P1 and ये दूसरी premise है let's say P2, right? So दो premises से आपको ये conclusion मिल रहा है that is Q, right? So validity prove करने के लिए हमें क्या करना होगा? वी आर नोन दैट अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि वैलिडिटी प्रूफ करने के लिए हमें P1 एंड P2, राइट? यानी कि जो आपकी P1 प्रीमाइस है P1 एंड P2, राइट? इन दोनों प्रीमाइसेस का एंड करें, राइट? एंड इफ देन वाली कंडीशन लगाए. इट मींस इफ P1 एंड P2 देन
Q2 यानी कि कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है Q। सो P1 एंड P2 implies C। अगर हम इस स्टेटमेंट को टोटोलॉजी प्रूव कर दें तो हम दिखा सकते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा, राइट। सो सोल्यूशन हम देखते हैं। वी नीड टू प्रूव दैट P1 की वैल्यू क्या है P और Q। सो हमने लिखा P और Q एंड नॉट P implies Q, राइट। यानी कि इफ दिस स्टेटमेंट, यानी कि हम सारी प्रोमाइसेस का एंड करते हैं एंड इफ इट इम्प्लाइज क्यू, जो कि आपका कंक्लूजन है, देन हमें क्या प्रूव करना है कि टोटोलॉजी होगी। अब किसी भी स्टेटमेंट को टोटोलॉजी प्रूव करना हमने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। हम किस तरह से प्रूव करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को वैलिड, या फिर किसी भी किसी भी आप स्टेटमेंट को टोटोलॉजी प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। अगर ट्रुथ टेबल नहीं बनाते हैं तो हम अलजेब्रा का यूज करते हैं। जितने भी हमने रूल्स पढ़े थे तो हम इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसकी डिस्कशन कर चुके हैं। तो हम देखते हैं कि इसको टोटोलॉजी प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट के लिए ट्रुथ टेबल बनाएंगे एंड अगर आपकी सारी ट्रुथ टेबल में वैल्यूज ट्रू है तो हम कह सकते हैं कि वो टोटोलॉजी होगा, राइट। तो हमने पहले कितनी वैल्यूज हैं, P और Q, दो ही वैल्यूज हैं यहाँ पर। सो वी हैव ड्रॉन, हमने सबसे पहले P और Q के लिए वैल्यू लिखी, राइट। वैल्यू लिखना हम बता चुके हैं। लेट्स से आप 1 1 ले लीजिए जो कि 2 का बाइनरी है, राइट। 1 1 1 को हमने 2 से डिनोट किया, सो ट्रू ट्रू आ गया। देन आप लिख सकते हैं 1 0 1 1 जो कि 3 का बाइनरी है, राइट। 3 देन 2 देन 1 1 को हम लिखते हैं 0 1 एंड लास्ट में आप लिख सकते हो 0 0। सो 0 1 2 3 इस तरह से आपने काउंटिंग की। सो फर्स्ट वन इज 0, देन दिस इज 1, देन दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों को हमने ट्रू ट्रू लिखा, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। अब आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करना है तो हमें सबसे पहले नॉट पी की वैल्यू निकाल ले। नॉट पी आप निकालेंगे तो आपको पी को रिवर्स करना पड़ेगा। इट इज ट्रू सो यू हैव रिटन फॉल्स, इट इज here true so you have written false and false को true लिख दिया, false को true लिख दिया, बिकॉज हमने p का नेगेशन किया है। नाउ p और q की वैल्यू निकालें। so हम यहाँ देखिए फर्स्ट रो में p और q दोनों टोटल ट्रू है तो p और q भी ट्रू होगा। ये ट्रू फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, राइट। क्योंकि कोई भी एक और निकालने के लिए या फिर आप ये कह सकते हैं डिस्जंक्शन निकालने के लिए कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रूथ है तो आपका रिजल्ट ट्रू मिलेगा। सो फॉल्स और ट्रू, ट्रू मिलने वाला है और बिकॉज यहाँ दोनों फॉल्स है लास्ट रो में, सो यहाँ पर फॉल्स मिला। अब क्या कर सकते हैं हम, अब हमें प्रीमाइस की वैल्यू निकालनी है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, हमें इन दोनों का एंड करना है, P1 और P2 का एंड करना है। सो हम इस वाले कॉलम का और इस वाले कॉलम का एंड करेंगे। एंड करने के लिए हमें पता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी रिजल्ट आपका ट्रू होगा, राइट। इट्स मींस हम डिसजंक्शन निकाल रहे हैं यहाँ। सो हियर वी ऑब्जर्व दैट फॉल्स एंड ट्रू, बिकॉज एक वैल्यू फॉल्स है सो इट इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू बिकॉज एक वैल्यू फॉल्स है सो इट इज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू बिकॉज दोनों वैल्यूज आपकी यहाँ पर ट्रू है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। एंड ट्रू और फॉल्स क्योंकि एक वैल्यू आपकी फॉल्स है तो ट्रू एंड फॉल्स आपका फॉल्स होगा। सो दिस इज द कॉलम, राइट। अब आपको क्या वैल्यू निकालनी है, अब आपको कैलकुलेट करना है P और Q, यानी कि इस कॉलम का हम यूज करेंगे यहाँ पर, राइट। हम यहाँ पर इस कॉलम का यूज करेंगे और इस Q कॉलम का यूज करेंगे। इन दो कॉलम का यूज करके हमें इफ देन इफ P then Q ये वाली कंडीशन लगानी है, राइट। तो हम देखते हैं बिकॉज इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स, राइट। तो इफ और देन, सो इफ फॉल्स देन ट्रू, आपको क्या मिलेगा, ट्रू। देन हमने देखा इफ फॉल्स देन फॉल्स, इन दोनों का रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। इफ ट्रू देन ट्रू, क्या रिजल्ट मिलेगा, ट्रू। एंड इफ फॉल्स देन फॉल्स, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ट्रू। या फिर हम दूसरी तरह से कर सकते हैं। लेट्स से इस पूरे कॉलम को मैंने कहा कैपिटल A, राइट, और इस पूरे कॉलम को मैंने कहा Q को कैपिटल B। सो मुझे यहाँ पर वैल्यू निकालनी है इस कॉलम के लिए, लास्ट कॉलम के लिए। तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये A implies B है, राइट। इफ A देन B टाइप का स्टेटमेंट हुआ और हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू जो इक्विवेलेंट होती है वो होती है नॉट A और B, राइट, नॉट A और B। हम इस तरह से इसकी वैल्यू निकालते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम देखें कि नॉट A, यहाँ पर मैं इस कॉलम को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। लेट्स से नॉट A निकालना है। नॉट A क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स की जगह ट्रू हो जाएगा,
राइट। और ट्रू और ट्रू क्या वैल्यू मिलने वाली है, दिस इज ट्रू, सो ट्रू और ट्रू आपको मिलने वाला है ट्रू, सो दिस इज ट्रू। अगेन सेकंड रो चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी नॉट ए और बी की जगह फॉल्स की जगह ट्रू हो जाएगा, एंड दिस इज फॉल्स, तो कोई भी एक वैल्यू ट्रू है, सो रिजल्ट इज ट्रू। नेक्स्ट हम चेक करें नॉट ए और बी, सो दिस इज ट्रू, इसका नॉट क्या हो जाएगा, नॉट ए निकालना है, दिस विल बी फॉल्स, और फॉल्स और ये वैल्यू है आपकी ट्रू, तो कोई भी एक वैल्यू आपकी ट्रू है तो रिजल्ट इज ट्रू, एंड दिस इज फॉल्स, तो इसका निगेशन हो जाएगा ट्रू, एंड यहाँ पर फॉल्स है, सो ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि एक कोई भी एक वैल्यू आपकी ट्रू होनी चाहिए। तो हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नॉट ए और बी लगाया। अब हमें देखना क्या है कि सारे कॉलम में वैल्यू जो है स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर क्या है, ये सारी ट्रू है, right? Because the whole column is true, so this is tautology, and if this statement is tautology, so we can say that the following argument, the given argument is valid, right? So this is how we can solve such type of questions जिसमें कि हमें वैलिडिटी प्रूव करनी होती है किसी भी आर्ग्यूमेंट की। Now here's another question. कभी कभी आपको स्टेटमेंट सिंबॉलिकली नहीं आता है, कभी कभी आपको थ्योरेटिकली स्टेटमेंट दे दिया जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले हमें उस स्टेटमेंट को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है सिंबॉलिक फॉर्म में, राइट? जब आप सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं देन यू स्टार्ट सॉल्विंग। सो आपको गिवन है टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, इफ इट रेन्स देन इट विल बी कोल्ड, if it is cold then I shall stay at home, since it rains therefore I shall stay at home। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको कंक्लूजन और प्रीमाइसेस का फाइंड आउट करना पड़ता है खुद से कि कैसे कौन सी आपकी प्रीमाइज होगी और कौन सी कंक्लूजन होगा। सो सबसे पहले हम लिखना शुरू करें अगर स्टेटमेंट को, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ यू ऑब्जर्व, सो इट इज इफ इट रेन्स देन आई विल बी इट विल बी कोल्ड। सो इफ इट रेन्स को लेट से मैंने बोला P, इट रेन्स इज P, Q इज इट विल बी कोल्ड। सो क्या हम इसे लिख सकते हैं if, क्योंकि ये if then लिखा है, सो वी विल राइट इट एज P implies Q, if P then Q, if it rains it will be cold, so it is P implies Q। Now the second statement is comma से separated है, it means second premises है, if it is cold then I shall stay at home। So let's say मैंने इस I shall stay at home को बोला R, this is the third statement, I shall stay at home को R के equivalent लिखा। So क्या मैं इसे लिख सकती हूँ if Q then R, so Q implies R, ये second premise हो जाएगी, right? And the third premise is since it rains, जब कभी जो भी सेंटेंस आपका therefore या hence से जुड़ा होगा, it means वो लास्ट आपका कंक्लूजन होगा। सो therefore से जो जुड़ा है सेंटेंस यहाँ पर वो है I shall stay at home, right? अब तो हम पहला ऑब्जर्व करें since it rains, so since it rains को हम क्या लिख सकते हैं P, therefore I shall stay at home, right? ये आपका हो जाएगा कंक्लूजन, राइट? सो यहाँ पर हमारी तीन प्रीमाइसेस गिवन है, P1 that is P implies Q, then P2 Q implies R, and P3 that is P, और जो आपका कंक्लूजन है इससे, राइट, R, कंक्लूजन क्या है आपका R, बिकॉज therefore से जुड़ा है, therefore I shall stay at home, so this is your conclusion that is R। अब अगर इस सेंटेंस को हमें, इस स्टेटमेंट को मुझे वैलिड प्रूव करना है, सो मुझे क्या करना होगा, P1 and P2, राइट, P1 and P2 and P3, P2 and P3, इसको मुझे इक्विवेलेंट प्रूव करना होगा, किसके बराबर, मुझे प्रूव करना होगा दैट इट विल यील्ड द कंफ्यूजन R, यानी कि जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, if P1 and P2 and P3 then R, राइट? इस स्टेटमेंट को अगर मैं टोटोलॉजी प्रूव कर देती हूँ तो ये मेरा स्टेटमेंट वैलिड कहलाएगा। नाउ अब होल सोल वर्क क्या है हमारा, इस पूरे स्टेटमेंट के लिए ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना एंड ये प्रूव कर देना कि आपका टोटोलॉजी है। सो वी विल सी दैट कि आप कैसे प्रूव करेंगे। अब मुझे इस स्टेटमेंट के लिए, अब मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इस स्टेटमेंट के लिए मुझे ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। सो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन वेरिएबल्स गिवन है, इट मींस P, Q एंड R, तीन स्टेटमेंट, तीन आपके वेरिएबल्स हैं सेंटेंस के। सो P, Q एंड R हमने वैल्यू लिखी, राइट? अब इसको लिखने का तरीका, इसके लिए आप ट्रुथ वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। सो 0 0 0 से स्टार्ट किया, 0 0 0 इज फॉल्स फॉल्स फॉल्स, दैट इज 0 का बाइनरी, फिर 0 0 1 1 का बाइनरी, दैट इज फॉल्स फॉल्स ट्रू, कि 0 को मैं फॉल्स बोल रही हूँ और 1 को ट्रू बोल रही हूँ। सो
ये एक वे है जिससे कि आप इजीली ट्रू फॉल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज 0 1 0, दैट इज फॉल्स ट्रू फॉल्स जो कि 2 का बाइनरी है. देन फॉल्स ट्रू ट्रू जो कि 3 का बाइनरी है. 0 1 1, देन 1 0 0, दैट इज ट्रू फॉल्स फॉल्स. देन आप लिख सकते हैं 1 0 1 जो कि 5 का बाइनरी है, सो ट्रू फॉल्स ट्रू. सिमिलरली आपने यहाँ पर लास्ट वैल्यू आपकी आएगी क्योंकि तीन तीन आपके कॉलम है, सो वैल्यूज आपकी 2 की पावर 3. इट मीन्स 2 की पावर 3 कितना होता है 8. इट मीन्स आपकी टोटल 8 वैल्यूज रहने वाली है, यानी कि 8 रोज रहने वाली है क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं. सो 2 की पावर 3 इट मीन्स 8, और 8 क्या होता है 0 to 7, तो 0 से 7 तक का बाइनरी यहाँ पर चलेगा. 0 इज फॉल्स एंड 1 1 1 इज 7. 1 1 1 का जो आपका वैल्यू आ जाएगी वो ट्रू 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 आ जाएगी. सो दिस इज हाउ यू कैन फिल द वैल्यूज फॉर पी क्यू एंड आर. नाउ अब का जो फर्स्ट है हमारा यहाँ पर दैट इज P implies Q, यानी कि if P then Q. तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालें. if P then Q, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप कर सकते हैं नॉट P और R, राइट. नॉट P और Q, सॉरी R नहीं होगा, नॉट P और Q. सो नॉट P और Q निकालें. सो यहाँ पर देखिए नॉट P क्या हो जाएगा, ये नॉट P हमारा यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा. फॉल्स और ट्रू इज ट्रू. देन बिकॉज बोथ आर ट्रू, सो ये आपका ट्रू होगा. नॉट P करें तो फॉल्स फॉल्स, अब ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे. फॉल्स और फॉल्स हमेशा फॉल्स मिलता है, सो दिस इज फॉल्स. अगेन यहाँ पर ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स. फॉल्स और फॉल्स हमेशा फॉल्स मिलेगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो दोनों का और फॉल्स होगा. अब हम नॉट P और Q करें, सो इट विल बिकम ट्रू. एंड और ट्रू क्या मिलेगा आपको ट्रू. सिमिलरली फॉल्स की जगह आपका नॉट करें तो आपका ये मिलेगा ट्रू. ट्रू और ट्रू हमको मिलेगा ट्रू, राइट. सिमिलरली यहाँ पर फॉल्स का निगेशन क्या हो जाएगा ट्रू, एंड ट्रू और फॉल्स आपको ट्रू मिलेगा. यहाँ पर सिमिलरली फॉल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं ट्रू. ट्रू और फॉल्स आपको ट्रू मिलेगा. सो हम ये देख रहे हैं कि इस कॉलम की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली. नाउ अब सेकंड प्रीमाइस की चांस है, सो इट इज Q implies R. तो हम Q implies R ऑब्जर्व करते हैं. सो if Q then R, राइट. तो इसे क्या हम लिख सकते हैं नॉट Q और R, राइट. सॉल्व करने के लिए आपको टेबल बनानी है. सो नॉट Q और R, इट मीन्स हम Q और R कॉलम का यूज करेंगे यहाँ. So not Q, it will become false because it is true, so it will become false. False और true is true. जिस तरह से हमने इस कॉलम की वैल्यू कैलकुलेट किया, सिमिलरली आप ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. अब जब आपने ये कॉलम कैलकुलेट कर लिया, नाउ योर नेक्स्ट काम क्या होगा यहाँ पर कि दोनों का एंड निकालना, राइट. आपने क्या करा क्योंकि इन दोनों का P implies Q एंड Q implies R यहाँ पर एंड हो रहा है. सो टू कैलकुलेट एंड हम क्या करेंगे ट्रू और ट्रू, राइट. इन दोनों का एंड इज ट्रू. ट्रू और फॉल्स, इन दोनों का एंड इज फॉल्स क्योंकि कोई भी एक वैल्यू फॉल्स होती है तो रिजल्ट फॉल्स हो जाता है. ये इन दोनों में एक वैल्यू फॉल्स है, सो दिस इज फॉल्स. इन दोनों ये दोनों ही ट्रू है, सो रिजल्ट इज ट्रू. एंड ट्रू एंड फॉल्स, एक वैल्यू फॉल्स है, सो दिस इज फॉल्स. ये दोनों ही ट्रू है, सिमिलरली ये दोनों ही ट्रू है, सो लास्ट दोनों कॉलम में क्या आ गया हमारा ट्रू. तो हमने एंड कैलकुलेट किया. देन आप इसका एंड किसके साथ कैलकुलेट करेंगे, इसका एंड आप कैलकुलेट करेंगे ए के साथ, पी के साथ, राइट. क्योंकि स्टेटमेंट में क्या है एंड पी. सो जब आप इसका एंड पी के साथ कैलकुलेट करेंगे, यानी कि आप इस कॉलम का यूज कर लीजिए और आप इस पी वाले कॉलम का यूज करेंगे, राइट. तो दोनों का आप एंड निकालें तो हम यहाँ पर देखेंगे दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, सो रिजल्ट इज ट्रू, राइट. क्योंकि दोनों का एंड ट्रू हो जाएगा. अब हम देखें ये नेक्स्ट रो में ट्रू है और ये फॉल्स है. सो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट इज फॉल्स. इस तरह से आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. दोनों का एंड हो जाएगा तो आपका ये कॉलम मिल जाएगा. नाउ तो अब आपका काम क्या बचेगा, अब आपका काम बचेगा क्योंकि अगर लेट से मैं इस पूरे स्टेटमेंट को कैपिटल ए बोलती हूँ तो मुझे स्टेटमेंट क्या है कैपिटल ए एम्प्लाइज आर, राइट. ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये क्या गिवन है, ये आपको गिवन है कैपिटल ए. क्योंकि मैं अगर सारी प्रीमाइसेस के जो एंड हो रहा है उसको कैपिटल ए बोलती हूँ, सो इट विल बिकम कैपिटल ए इम्प्लाइज आर. सो मुझे यहाँ पर यही कैलकुलेट करना है कैपिटल ए इम्प्लाइज आर, राइट. तो यानी कि इस कॉलम का यूज करने वाले हैं हम और यहाँ पर हम आर का यूज करने वाले हैं, राइट. इन दोनों कॉलम्स का हम यूज करने वाले हैं. सो नॉट ए और आर लिख सकते हैं इसे नॉट ए और
आर, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जब हम नॉट ए निकालें, सो दिस इज ट्रू, तो इसका नॉट क्या हो जाएगा, फॉल्स, राइट, और फॉल्स और ये दिस वैल्यू इज ट्रू, सो फॉल्स और ट्रू विल बिकम ट्रू, सो फर्स्ट रो में आपका आ गया ट्रू। सिमिलरली दिस इज फॉल्स, राइट, फॉल्स का हम नॉन निगेशन करें, सो इट विल बिकम ट्रू, राइट, ट्रू और सेकेंड इज फॉल्स, सो ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, राइट। तो हमें क्या करना है, नॉट ए और आर करना है, इसमें इसकी वैल्यू ट्रू कब मिलेगी, जब दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो या दोनों ट्रू हो, तो उस केस में हमें ट्रू मिलेगा। तो सिमिलरली हम इस रो, ये जो मैंने येलो पार्ट से शो किया है इस कॉलम और आर वाले कॉलम का यूज करके नॉट ए और आर की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं इस स्टेटमेंट का जो पूरा कॉलम है, ये पूरा कॉलम आपका ट्रू मिल रहा है, राइट। वंस यू फिनिश इट कैलकुलेटिंग, सो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस पूरे कॉलम में आपको ट्रू मिल रहा है। तो अगर ये ट्रू मिल रहा है, इट मीन्स ये टोटोलॉजी है, एंड अगर ये टोटोलॉजी है ये पूरा स्टेटमेंट, सो यू कैन से दैट द स्टेटमेंट इज वैलिड। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स, आप किसी भी स्टेटमेंट को वैलिड कैसे प्रूव कर सकते हैं, राइट, किसी भी आर्ग्यूमेंट को वैलिड कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो आप ये मेथड यूज करेंगे। तो अभी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस क्वेश्चन को हम दो तरह से प्रूव कर सकते हैं, आइदर यू कैन यूज रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस और यू कैन मेक द ट्रुथ टेबल। तो अभी हमने ट्रुथ टेबल वाला मेथड डिस्कस किया है, नेक्स्ट मेथड हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट, राइट, ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसके लिए हमें प्रूव करना है कि स्टेटमेंट आपका वैलिड होगा। सो पहले स्टेटमेंट देख लें, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर इक्वल, राइट। तो हमने लेट्स से हमने इस स्टेटमेंट को P बोला, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, एंड इस स्टेटमेंट को मैंने बोला Q, तो क्या मैं से लिख सकती हूँ, फर्स्ट प्रीमाइस हो जाएगी P implies Q, यानी कि इफ P then Q। नाउ द नेक्स्ट में दिया है टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर नॉट इक्वल, राइट, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट को P दिया है तो क्या मैं इसे नॉट P दे सकती हूँ, सो नॉट P मेरी हो जाएगी गिवन प्रीमाइस। एंड यहाँ पर आपका अंडरलाइन है और अंडरलाइन के नीचे हैंस लिखा है, राइट, हैंस द अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज Q और इसका निगेशन क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन, निगेशन कंफ्यूजन, राइट। सो अब मेरे पास एक प्रीमाइस है दैट इज P1, दूसरी प्रीमाइस है दैट इज P2 जो कि आपकी निगेशन ऑफ P है, और दिस इज कंक्लूजन, राइट, Q इज कंक्लूजन, नॉट Q इज कंक्लूजन। सो मुझे प्रूफ क्या करना होगा, P1 and P2 implies conclusion, right, it means P implies Q and not P will yield to conclusion, not Q। सो मुझे प्रूफ करना होगा, मुझे इस स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, एंड ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको शो करना है कि अगर सारे कॉलम में, लास्ट कॉलम में आपकी जो वैल्यूज हैं सारी ट्रू होती हैं तो वो टोटोलॉजी होगा, और हम उसे बोल सकते हैं टोटोलॉजी होने के साथ साथ इस जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, वैलिड। सो हम यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं। आई थिंक आप अब टेबल्स इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी दो क्वेश्चंस कर चुके हैं, एंड सिमिलर वे में जिस तरह से आपने प्रीवियस क्वेश्चन में टेबल्स कैलकुलेट की हैं, आप इसमें भी टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देख लेते हैं चलिए एक बार। सो हमें यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमें P और Q दो ही वैल्यूज हैं, सो हमने P और Q दो वेरिएबल लिखे, उनकी ट्रुथ वैल्यूज यहाँ लिखी, राइट, P और Q की ट्रुथ वैल्यूज। अब आप पहले इस प्रीमाइस की वैल्यू निकाल लीजिए, P implies Q की वैल्यू, तो हमने P implies Q एक कॉलम बनाया, देन नॉट P के लिए कॉलम ड्रॉ किया, एंड नॉट Q के लिए भी हमने कॉलम ड्रॉ कर लिया। अब आपको जिसका एंड करना है, जैसे कि हमें इसका एंड करना है और नॉट P का एंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम का एंड इस कॉलम का एंड करेंगे, राइट, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। एंड देन आप इस पूरे स्टेटमेंट को इफ देन नॉट Q, राइट, लेफ्ट साइड का जो पूरा स्टेटमेंट है उसको आप लेंगे, यानी कि आप इस कॉलम का यूज करेंगे, ये जो आपने कैलकुलेट किया है अभी यहाँ पर, राइट, इफ दिस देन यानी कि implies not Q, इन दोनों का यूज करके आप ये प्रूव कर देंगे यहाँ पर। तो हम इस लास्ट कॉलम को ऑब्जर्व करें, तो स्टूडेंट मैं इस टेबल को डिस्क्राइब नहीं करी, यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय योर ओन। सो मेरा काम क्या है यहाँ पर, लास्ट कॉलम को ऑब्जर्व करना, राइट। अब लास्ट कॉलम को अगर हम ऑब्जर्व करें तो सारी वैल्यू ट्रू नहीं है, एक वैल्यू आपको फॉल्स भी मिल रही है,
राइट. इट मीन्स वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट, ये जो गिवन स्टेटमेंट है, this statement is not tautology, right? So the last column is not tautology because सारी value true नहीं है, hence the given argument is not valid, right? इसलिए आपका जो given argument है valid नहीं होगा. So students, I think ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा. यहाँ पर हमने किसी भी आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी के बारे में पढ़ा है कि वैलिडिटी कैसे प्रूव करते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड जिससे कि आप वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिंग द ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल बनाकर आप टोटोलॉजी प्रूव कर दीजिए. एंड द अनदर मेथड विल बी, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो है रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस, राइट. अगर रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस का यूज करके, यानी कि आप डायरेक्ट यूज करके, आपको ट्रुथ टेबल नहीं बनानी पड़ेगी, आप रूल्स यूज करके प्रीमाइसेस पे आप कंक्लूजन अगर ले आते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट. सो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस विल बी आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जिस पर. सो आई थिंक वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा. इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो.